Yes, students. So welcome you all for again one of the fantastic lecture here on practice sums on salary income. So here we are going to solve all sums on salary now. Now let's have a quick review, quick recap of what we have seen. We have seen the first rule before solving the sums that basic salary, bonus, fees, commission, advance and arrear salary are always fully taxable parts of salary income. मतलब ये कंपोनेंट अगर दिखते हैं तो इनको एज इट इज उठाना है और टैक्सेबल लेना है पूरा का पूरा. और we all know that salary is given per month, so in all sums of salary, if per month anything is given, we need to multiply it by 12, and if per month is not given, then obviously the figure is usually considered as per annum, and in that context the figure need to be taken as it is. So that is the first rule. So second rule rather, first rule मैंने आपको बोला basic salary, bonus, fees, commission, advance and arrear salary are always fully taxable. तो हम sum solve करते हैं one by one, but before solving the sums, let me have a quick recap of what we have seen. So this is how the format is going to look like here. Format कुछ इस तरह से आगे आएगा. कुछ notes मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ which are very important and which we need to write down. So सबसे पहले पहला rule क्या मैंने आपको बोला अभी, just the first important thing is important note. I'm going to write it down here as important note. And what is the note, everybody? Number one, it is basic salary or called as basic pay as well. Along with that, bonus, commission, fees, advance and arrear salary, bonus, commission, fees, comma, advance and arrear salary. All these components are fully taxable. ये सबको हमें कैसे लेना है बेटा? फुली टैक्सेबल लेना है. तो इनमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ना कोई रूल की यहाँ पे जरूरत है. सो द फर्स्ट रूल इज बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड एरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल. पहला सम है तो थोड़ा टाइम लेंगे, सब इलाबरेट करके सम सॉल्व करेंगे बेटा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे. सेकेंड रूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, that all calculations are given per month, so just we need to multiply it by 12 as far as the lectures are concerned. इसके बाद what is the second component comes into the picture, that is allowances. और हमने allowances कैसे देखे थे? that fully taxable, fully exempted, partly taxable and partly exempted. तो करना क्या है? fully taxable allowances will be taken as it is, उनको as it is लेना है, पूरी तरह से taxable करना है. fully exempted allowances वैसे किस्मत से मिलते हैं, 4 ही होते हैं. That is usually given to the government service and ये hardly सब में आता है. आए तो इनको छोड़ देना है, working note लिखना है as these are fully exempted, so you need not take it. अब बात आती है partly taxable और partly exempted allowances पे. तो हमारा पूरा फोकस रहेगा allowances में, partly taxable, partly exempted allowances, जिसके लिए working note बनेंगे और जिसको हमें solve करना पड़ेगा. ऐसे कौन से allowances है जो partly taxable और partly exempted है और हमें किस पे ध्यान देना है? Number one is HRA, absolutely, called as house rent allowance. Second is entertainment allowance. Third is education allowance. Fourth is hostel allowance or children hostel allowance. Children education allowance भी बोला जाता है, children hostel allowance भी बोला जाता है, सबका मतलब एक ही है. और इसके बाद next is ट्रांसपोर्ट अलाउंस कभी हुआ करता था पार्टली टैक्सेबल में, लेकिन अब पूरा टैक्सेबल रहेगा क्योंकि इसका एग्जेम्पशन मिलता है हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), that is standard deduction rupees 50,000. तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल में आ जाएगा अभी. और हमें देखने हैं स्पेशल अलाउंसेस, that is अंडर सेक्शन 16(1) एंड 16(2). तो ये 16(1) के अपन अभी देख ही रहे, HRA, EA, एजुकेशन अलाउंस और हाउस, इट इज हॉस्टल अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. इसी के साथ और कुछ स्पेशल अलाउंसेस है अंडर सेक्शन 16(1), जिसमें आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसमें आता है ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस सॉरी एंड हेल्पर अलाउंस. और इन 7 अलाउंसेस का एक ही रूल था, आपको याद होगा, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच अलाउंस और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन सच अलाउंस, व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड. ऐसा कोई रूल हमने देखा था एज फार एज दीज 7 अलाउंसेस आर कंसर्न्ड. सो दीज 7 अलाउंसेस, ये 7 अलाउंसेस अगर आते हैं तो हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज इट इज लेना है, उसमें से एक्चुअल अमाउंट स्पेंट हमें माइनस करना है, बचे वाला टैक्सेबल रहेगा.
तो ये 7 अलाउंसेस के लिए, ये चारों के लिए रूल हमें देखना पड़ेगा। एचआरए, ईए, एजुकेशन और हॉस्टल के अपने अपने रूल अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर उसकी तरह कैलकुलेशन उसका करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट्स माय डियर इज पर्क्स और परक्विजिट्स। तो पर्क्स और परक्विजिट में क्या क्या आता है? पर्क्स और परक्विजिट में आता है obviously that is taxable perquisites for all and exempted perquisites for all. So taxable perquisite में सबसे पहले क्या आएगा? That is house. हाउस में हमें 4 कैटेगरीज पता है, अनफर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस, हाउस एट कंसेशनल रेंट एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। तो हाउस अगर आता है तो ये 4 कैटेगरी के हिसाब से रूल अप्लाई करने पड़ेंगे और कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोटर कार। मोटर कार में कार ओनली फॉर ऑफिशियल यूजर्स इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कार ओनली फॉर प्राइवेट यूजर्स इज फुली टैक्सेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे चार्ट पिक्चर में आता है और कुछ रूल आते हैं, दैट इज कार इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पजेस। तो उसके रूल है, तो वहां पे देखना पड़ता है कि कार स्मॉल है या बिग है। स्मॉल कार मतलब लेस देन 1600 सीसी, बिग कार मतलब मोर देन 1600 सीसी और 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी। एंड अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू चेक आउट इन अ कार इज व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ सच कार आर पेड बाय एम्प्लॉयर और reimbursed by employer, that is running, maintenance, driver salary, ये सारा कौन पे करता है? एम्प्लॉयर करता है या एम्प्लॉय करता है? एम्प्लॉयर करता है तो रूल अलग है, एम्प्लॉय करता है तो रूल अलग है। तो वो सारे रूल हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इसके साथ और कुछ परक्विजिट हमने देखे थे। फ्री मील ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील। उसके साथ गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड, इसके रूल अपने हैं। Cash gift is always fully taxable and kind gift is exempted up to ₹5,000 per annum. More than that is taxable. उसी के साथ और कुछ rules है as far as perquisites are concerned, and that is domestic servants. I'm just revising or a quick recap of what we have seen. Domestic servants are fully taxable. And then education facility. एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। याद रखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन अलाउंस अलग, एजुकेशन फैसिलिटी अलग, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस अलग और डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी अलग। फैसिलिटी कम्स अंडर परक्विजिट्स और पर्क्स, व्हेयरएज अलाउंस कम्स अंडर अलाउंसेस देयर। तो एजुकेशन अलाउंस और एजुकेशन फैसिलिटी अलग है, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी अलग है, क्योंकि एक परक्विजिट है दूसरा अलाउंस है। उसी के साथ फ्री गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी that is given by the employer to the employee. तो फ्री गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका टैक्सेबिलिटी जो भी रहेगा उसकी तरह से हमें देखना है। So these are certain things which we need to check out. वैसे perquisite we cannot restrict because perquisites are anything which is provided by the employer to the employee free of cost over and above cash salary. तो इसको ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। Even insurance premium of employee paid by employer is a taxable perk. हाँ, उसका डिडक्शन अलग से मिलेगा, वो 80C, 80D वहां पे मिलेगा, लेकिन पहले तो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया इसलिए उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। हाउस है, कार है, फ्री मील है, गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड, डोमेस्टिक सर्वेंट, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और इसी के साथ क्रेडिट कार्ड, क्लब हाउस, ये सारे जो परक्विजिट्स का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हमें देखने पड़ेंगे। एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स क्या है? व्हाट आर द एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स? इट इज मोबाइल फोन, टेलीफोन तो अभी हार्डली कहीं पे देखा जाता है, बट यस इफ इट इज होगा, मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, all these given by the employer to the employee for official or personal users is fully exempted from tax. तो ये one of the exempted perquisite students याद रखिए। तो exempted perquisites में क्या क्या आएगा? मोबाइल फोन फैसिलिटी, टेलीफोन फैसिलिटी, along with that the other things, एक तो मोबाइल फोन, एक तो टेलीफोन, if these are provided by the employer to the employee then these are fully exempted from tax. इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन लैपटॉप एज वेल, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जो भी हो, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीफोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट है। और एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स क्या क्या है? फ्री रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यानी रिफ्रेशमेंट अगर देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। अलॉन्ग विद दैट एनी ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो मैंने क्या क्या बोला? मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीफोन फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू दैट any kind of
other facility in the form of what? In the form of exactly that is personal computer, mobile, laptop, ये सारा या टेलीफोन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो ये पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है. अलॉन्ग विद दैट एनी इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर to effect an assurance on the life of the employee is fully exempted from tax. Any common facility जैसे कि क्रेच है, स्कूल है, रोड है, ये अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए बनाया, जैसे कोई भी रिमोट एरिया में बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, और इट इज prepared or it is made for all the employees, then also it is fully exempted from tax. तो ये कुछ exempted perquisite है, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. exempted perquisite ध्यान रखने हैं. तो तीन चीजें हमने देखी अभी तक. मेन सबसे पहला बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस सैलरी जैसे ही दिखता है एज इट इज ले लो और फुली टैक्सेबल करो, इस पे कोई रूल नहीं लगेगा. दूसरा हमने देखा अलाउंसेस में हमें ध्यान देना है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस पे, उस पे भी खास करके HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, children education allowance, children hostel allowance, and then special allowances under section 16 subsection 2 जिसमें आएगा washing allowance, along with that conveyance allowance, helper allowance, daily allowance, uniform allowance, academic research allowance, traveling and transfer allowance जिसका रूल है actual amount received on such allowance or actual amount spent on such allowance whichever is lower is exempted. और दूसरा रूल इसमें आता है अगर ये 7 allowances में amount spent is not given, then allowance amount itself is assumed as spent amount and hence it is fully exempted from tax. तो ये कुछ रूल याद रखने हैं पार्टली टैक्सेबल के लिए. पर्क्स में आता है हाउस, कार, फ्री मील, गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड, डोमेस्टिक सर्वेंट, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रेडिट कार्ड. तो इसके रूल के हिसाब से हमें इसका टैक्सेबिलिटी देखना है. नेक्स्ट टू दैट व्हाट वी आर सपोज टू सी इज, इसके बाद हमें क्या देखना है, तो इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ PF. PF is taxable on the basis of 4 types of funds, that is SPF, RPF, URPF and PPF. तो हमने लगभग देखा है सब में एग्जम्पशन होता है एक्सेप्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू URPF इज फुली टैक्सेबल. और हमने देखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू SPF, RPF and PPF is exempted from tax under section 80C. max to the limit of rupees 1.5 lakh per annum. ये हमने डिडक्शन के लेक्चर में भी देखा है और उसके पहले लेक्चर में जब हमने PF डिस्कस किया था एट लेंथ तो उसमें भी हमने देखा है. सो PF में 1.5 लाख का डिडक्शन देंगे एक्सेप्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू URPF. अगर बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो SPF में इट इज फुली एग्जम्प्टेड, RPF में it is exempted up to 12% of meaning of salary, more than 12% of meaning of salary is fully taxable. URPF में fully exempted है और PPF में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कोई लेना देना ही नहीं आता क्योंकि PPF is only for self-employed people, businessmen, doctor, lawyer, chartered accountant who are self-employed and not employed anywhere. तो उनके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं आता. बात आती है इंटरेस्ट ऑन PF की, तो इंटरेस्ट ऑन PF in all PF is exempted except RPF, it is exempted up to 9.5% of such interest. More than 9.5% of interest is taxable and added into salary income of employee. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है PF के रूल्स और उसके हिसाब से हमें करना है. PF के बाद हमें क्या ध्यान देना है, the next component is gratuity and pension. gratuity और pension में हमने देखा था any gratuity or pension which is received in continuation of employment is fully taxable no matter employee is government or private. ऐसा एक रूल हमने देखा था. उसके बाद हमने ग्रेच्युटी में देखा था कि एग्जम्पशन होता है कब, अगर एम्प्लॉय प्राइवेट है उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो इट इज एग्जम्प्टेड एज लिस्ट ऑफ बिलो 3 नंबर 1 एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, नंबर 2 लास्ट ड्रॉन सैलरी दैट इज बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. दैट इज व्हाट द रूल फॉर ग्रेच्युटी रिसीव्ड फॉर अ प्राइवेट एम्प्लॉय दैट टू ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट इज एग्जम्प्टेड एज लिस्ट ऑफ बिलो 3. ये तीनों में से जो लोअर आएगा वो एग्जम्प्टेड रहेगा. नंबर 1 एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, नंबर 2 मैक्सिमम सम ऑफ रुपीज 20 लाख. अगर मैंने कुछ और बोला है तो याद रखिए अभी अमेंडेड रूल में 20 लाख रुपए, मैक्सिमम सम ऑफ रुपीज 20 लाख पर एनम. और तीसरा है लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस ओनली DA फॉर्मिंग पार्ट दैट इज एंटरिंग इनटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. वैसे ग्रेच्युटी लॉयल्टी बेनिफिट है, मतलब जितनी ज्यादा सर्विस उतना ज्यादा बेनिफिट. तो ये ग्रेच्युटी का रूल है. ग्रेच्युटी रिसीव्ड इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल नो मैटर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और प्राइवेट. ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जम्प्टेड इफ इट इज रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट. ये भी रूल हमने देखा है. उसके बाद पेंशन की तरफ चलते हैं. पेंशन भी वही रूल है. Pension is if it is received
in continuation of service to any employee, then it is fully taxable, no matter employee is government or private. आप बोलेंगे पेंशन ऐसे मिल सकती है क्या? मिल सकती है, कुछ रूल वैसे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी के, तो पेंशन अगर आपको मिली और पेंशन मिलने के बाद आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली दिस पेंशन इज फुली टैक्सेबल। हाँ, अब बात आती है अगर पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट, देन दैट इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। Pension received by a government employee on or after retirement is fully exempted from tax. Now, pension received by a private employee on or after retirement, इसके दो रूल है। If the employee has already received gratuity and if the employee haven't received gratuity, and that too such pension should have been a commuted pension. Commuted pension का मतलब है one time pension, one time settlement. आपको हर महीने नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। So if you are receiving a commuted pension, if you are a private employee and you already received gratuity, then 1/3 of such commuted pension is exempted. 1/3 अगर exempted है मतलब 2/3 of such commuted pension is fully taxable. और अगली बात करते हैं that pension received by a private employee on or after retirement and at the same time the employee haven't received any gratuity. In such a case, half of such commuted pension is exempted and half of such commuted pension is taxable. So that is the rule for pension there. और अगला रूल आता है pension के लिए, that is uncommuted pension. Uncommuted pension is the periodical pension which is received by the employee each and every month on or after retirement, and that is called as uncommuted pension. Uncommuted मतलब हर महीने मिलेगी, and uncommuted pension received by any type of employee is fully taxable. याद रखिए, uncommuted pension अगर आपको मिलती है तो पूरी तरह से taxable होती है। तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद हमें रूल देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दैट डिडक्शंस। कौन से डिडक्शंस? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तीन ही डिडक्शंस आते हैं, हमने एक्सप्लेन किए ये लेक्चर में। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल फॉर ऑल। नंबर 2 इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय एज पर सेक्शन 2, दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड absolute limit of rupees 5,000 per annum and 20% or 1/5 of basic salary, whichever is lower is exempted. तीसरा है उसमें प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों डिडक्शन हमें देने डिपेंडिंग ऑन देयर रूल्स दे। एक बस 10 मिनट का लेक्चर मैंने इसके रिकॉर्ड किया था 16 का, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम का। आई होप यू हैव सीन इट, तो यहाँ पे यूज होगा। और सबसे आखिरी में हमें देखना है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC एंड ATD। वैसे तो बहुत सारे डिडक्शन है, ये नॉर्मल दो आते हैं, बहुत बार आते हैं, नॉर्मल है ये। वैसे बहुत सारे ATC, ATCCD 1B मैंने एक्सप्लेन किया था, और ATD। तो ये डिडक्शंस बहुत मैटर करते हैं। सो दीज डिडक्शंस वी नीड टू चेक आउट। इतना सारा चेक करने के बाद हम सम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सैलरी इनकम का। तो इतने सारे रूल देखने के बाद हम चलेंगे और सैलरी का सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी एक प्रैक्टिकल सम पूरा आपको सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सम सॉल्व करने पहले आपके रूल्स पक्के होने चाहिए, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, रूल्स अमेंडेड होने चाहिए। अमेंडेड मतलब रिलेवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2022 to 23। अभी के देख रहे हैं हम, तो 22-23 के रूल देखने पड़ेंगे। अगले साल जाएंगे तो हमें 23-24 का देखना पड़ेगा, उसमें रूल्स चेंज होंगे तो अमेंड करने पड़ेंगे। और रूल में अमेंडमेंट कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज इट इज इनकम टैक्स, है ना। और इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या काम में आता है? सेक्शंस। तो सेक्शन के हिसाब से अगर रूल में चेंजेस, और चेंजेस कहां पे होते हैं? चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट का जो बजट आता है हर साल फरवरी में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेंजेस बताते हैं कि क्या आने वाले साल में चेंजेस होंगे, क्या आने वाले साल में एग्जम्पशंस बढ़ेंगे घटेंगे। तो सारे चेंजेस के लिए ट्यून इन टू द बजट, ट्यून इन टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन यूजुअली देयर इज 27 और 28 ऑफ फरवरी पे ये होता है, कभी कभार 29 पे भी होता है। सो दैट वे अराउंड ऑल दीज नोट्स आर वेरी एसेंशियल। चलिए पहला सम सॉल्व करते हैं और मैं फिर से आपको सम बताता हूं। अब जब हम सम देख रहे हैं तो यहां पे भी कैटेगरीज बनती है, जैसे मैंने आपको नोट्स पे अभी कैटेगरीज बताई। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड एरियर सैलरी, ये अगर होंगे तो इनको उठाना है, एज इट इज लेना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद हमें अलाउंसेस लेने हैं, उसमें पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड पे हमें फोकस करना है। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस एज इट इज लेना है, फुली एग्जम्प्टेड छोड़ना है। फिर परक्विजिट्स, फिर PF, फिर ग्रेचुटी, फिर पेंशन, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। तो ये सीक्वेंस रहेगा। याद रखिए बिफोर डिडक्शंस व्हाट वी कैलकुलेट इज ग्रॉस सैलरी। कोई भी डिडक्शन देने के पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बुलाते हैं? ग्रॉस सैलरी बुलाते हैं।
तो कुछ भी डिडक्शन करने के पहले हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस के बाद हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देने हैं और बाद में देने हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। लेकिन यहाँ पे हमने बस 80C, 80D और 80CCD 1B ये तीन ही कंसिडर किए हैं क्योंकि ये ज्यादा यूटिलाइज होते हैं एज फार एज सैलरी इनकम इज कंसर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेक करना है कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यू कैन सी मिस्टर दत्ता इज एन अकाउंटेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी इन पुणे, स्पेसिफाई किया है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय गवर्नमेंट हुआ। ही फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ऐसा हम लेंगे। यहाँ पे जो भी होगा, क्योंकि हम रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो हम मानेंगे कि 21-22 का डेटा हमें दिया है और हमें उसका टैक्स कैलकुलेशन करना है असेसमेंट ईयर 22 और 23 के लिए। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट इन टैक्स देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट देखिए जरूर। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है 1 by 1, तो हम बस इसको सेग्रीगेट करके लेंगे व्हाइल सॉल्विंग। सबसे पहले बेसिक सैलरी दी है विच इज फुली टैक्सेबल। Second is DNS allowance. DNS allowance also comes under fully taxable and it is given 40% of basic salary. But bracket says it is not admissible for retirement benefits, मतलब it is a non-forming part. वैसे फॉर्मिंग पार्ट हो या नॉन फॉर्मिंग पार्ट हो, DA fully taxable allowance होता है बाय रूल। Entertainment allowance 1000 per month। इंटरेस्टिंग, पहले इसको लेना है। अब एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, पहले ग्रॉस सैलरी निकालनी है, इसको पूरा टैक्सेबल लेना है और फिर ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) देना पड़ेगा। सॉल्व करते टाइम बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल। नाउ समथिंग इज गिवन पर मंथ, नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12। समथिंग इज गिवन पर annum, इट इज टू बी टेकन एज इट इज। अब यहां तक अलाउंसेस है, उसके बाद उन्होंने दिया है पीएफ, तो पीएफ ले लेते हैं और पीएफ में हम 3 कंपोनेंट लेंगे कभी भी स्टूडेंट्स। नंबर 1 employee contribution, number 2 employer contribution and number 3 interest on PF. Whatever PF is given that doesn't matter, SPF, RPF, URPF और PPF। कभी भी हमारे टेबल में 3 चीजें होंगी। जब भी हम टैक्सेबल PF लिखेंगे तो हम टैक्सेबल PF लिखते टाइम उसका नाम लिखेंगे, RPF रहा तो RPF, SPF रहा तो SPF, PPF रहा तो PPF एंड URPF रहा तो URPF। उसमें 3 एलिमेंट आएंगे। नंबर 1 इज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 3 इज इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज गिवन परक्विजिट, तो कार दी है और कार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की नहीं है, रादर इट इज गिवन फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट। तो इसके लिए टेबल के हिसाब से वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। सो वी गॉट परक्विजिट नंबर 1। सेकंड परक्विजिट इज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन फॉर विच एम्प्लॉयर चार्जेस ₹500 पर मंथ। यानी एम्प्लॉयर ने आपको अनफर्निश्ड घर दिया है और उसके लिए एम्प्लॉयर चार्ज कितना कर रहा है, ₹500 पर मंथ। तो ये हाउस कैसा हुआ, दिस इज the house, you can say that it is a unfurnished house at concessional rent। ये unfurnished house concessional rent का हुआ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर मिलता है तो वहां पे वैल्यूएशन शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा एक रूल आता है जो इन्होंने दिया नहीं है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हाउस का ये सब में हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इन लाइन विद द प्रोविजंस। प्रोविजंस बोलती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रहा तो वैल्यूएशन हाउस का यहाँ पे देना पड़ता है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर स्टूडेंट्स, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का रूल वहां पे देना पड़ेगा वैल्यूएशन का, तब ये जाके आता है। इसलिए हाउस वी आर गोइंग टू इग्नोर फॉर दिस सम। एक्सक्यूज मी, जब मैं आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट so that there won't be any confusion. Rest will be as it is. Interest on RPF is given which we need to take into taxable RPF and he paid professional tax. सैलरीड एम्प्लॉय बोल के आपको जो कुछ मिल रहा है उसका टैक्सेबिलिटी निकलता है। आपने जो कुछ पे किया है, जो कुछ इन्वेस्ट किया है, दैट डजंट कम एज टैक्सेबल, दैट आइदर कम्स एज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 16 और 80 और इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सम देयर। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, याद रखिए सैलरी के सम में जो कुछ एम्प्लॉयर आपको दे रहा है बेनिफिट, वही सारे या तो टैक्सेबल आएंगे या तो एग्जम्प्टेड। बीइंग एम्प्लॉई आपने जो कुछ पे किया है, जो कुछ एक्सपेंसेस किए है, जो कुछ सेव किया है, या तो वो डिडक्शन का पार्ट आएगा 16 या 80 में, या तो सम का पार्ट नहीं आएगा। बड़ा सिंपल बात है। तो प्रोफेशनल टैक्स तो डिडक्शन आता है 16 में, 16(3) में टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, तो ये डिडक्शन में आएगा स्टूडेंट्स।
और ये क्वालिफाइंग सेविंग बोलते हैं। क्वालिफाइंग सेविंग मतलब सारे लगभग 80 के डिडक्शन है, और आप देख सकते हैं ये सब 80C है जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था, जहां पर हमने सारे डिडक्शन डिस्कस किए 80C के। तो LIC प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सब कुछ 80C है, which is subject to a max limit of rupees 1.5 lakh per annum or actual amount of investment whichever is lower, and then compute the taxable income from salary and tax rebate if any for assessment year 2022-23, क्योंकि ये 14-15 सम पुराने रहेंगे, हम कभी भी अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये साल के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23। तो ऊपर हमने 21-22 पढ़ा FY में, नीचे असेसमेंट 22-23 पढ़ेंगे। तो सम का इस तरह से हमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा। अब जैसे सम दिया वैसे ही साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सम सॉल्व करते टाइम एक चीज याद रखनी बेटा, दैट वी नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स एंड वर्किंग नोट शुड बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं ऊपर हमने फॉर्मेट बनाया था। सो हियर इज द फॉर्मेट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर दत्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब वन बाय वन कंपोनेंट लेने, 3 टेबल मैंने किए, 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट। और याद रखिए स्टूडेंट्स दैट वी नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। कैलकुलेशन और वर्किंग नोट साइमल्टेनियसली लिखना है, सीक्वेंस कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, जिस तरह से आया है उस तरह से लेना है। सिर्फ जब सारे अलाउंसेस ले रहे, सारे अलाउंसेस इकट्ठा रहेंगे, सारा परक्विजिट इकट्ठा रहेगा, सारा PF इकट्ठा रहेगा, ग्रेच्युटी पेंशन इकट्ठा रहेगा, एंड दैट वे अराउंड वी आर गोइंग टू डू द सम, देन ग्रॉस सैलरी, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। इस तरह से करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं जो कुछ पहला दिया है। सबसे पहले क्या दिया है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन बेसिक सैलरी, एम राइट। यहां पे मैं और एक सीधा ड्रॉइंग कर लेता हूं, दैट इज मच बेटर, सो दैट वी कैन जस्ट सेग्रीगेट द नंबर्स एज वेल। नंबर्स भी सेग्रीगेट कर लेते हैं, बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी, एंड दैट इज जस्ट फॉर सीरियल नंबर। वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर। So let's start it. So number 1 given is basic salary। देखिए कितना दिया है बेसिक सैलरी, कुछ कैलकुलेशंस हमें बताने, साइमल्टेनियसली हम करेंगे। हाउ मच इज गिवन बेसिक सैलरी इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दी है, आप देख सकते हैं, एंड दैट इज गिवन ₹10,000 पर मंथ। बाय रूल बेसिक सैलरी इज फुली टैक्सेबल, सो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, एंड आई कैन राइट डाउन इन इनर अमाउंट दैट इज 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन साल का है, सो इट इज 1,20,000, दैट इज द कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी। सेकेंड इज गिवन DNS अलाउंस, सो इट इज DNS अलाउंस एंड इट क्लियरली सेज दैट इट इज नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में दिया है इसलिए हमने दिया बेटा, इसके जो भी रूल आएंगे अलग अलग, दैट वी आर गोइंग टू सी एज एंड व्हेन दे विल कम। एंड हाउ मच इज DNS अलाउंस, वैसे DNS अलाउंस दिया कितना है देखते हैं, एंड DNS अलाउंस गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹40% ऑफ बेसिक सैलरी नॉट एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 40% दिया है बेसिक सैलरी का, और नॉट एडमिसिबल बोला है मतलब नॉन फॉर्मिंग पार्ट, तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स 40% ऑफ बेसिक। अब पर मंथ लेंगे तो इंटू 12 करना पड़ेगा, पर एनम ले लेता हूं, डायरेक्टली ले सकते हैं, तो 40% 1,20,000 का, दैट कम्स 48,000। Any DNS allowance is fully taxable no matter it is forming part or non-forming part, because it is a part of fully taxable allowances। याद रखिए बेटा, DNS allowance fully taxable होता है, डियर है, बहुत डियर है हमारा, क्योंकि इट इज नथिंग बट गिवन फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इनटू द सोसाइटी। DNS अलाउंस फॉर्मिंग हो नॉन फॉर्मिंग पार्ट हो, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। दोनों दिया तो दोनों भी टैक्सेबल है, बिकॉज इट कम्स अंडर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो DNS अलाउंस नॉन फॉर्मिंग पार्ट 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 48,000 लिया। अगर मैं पर मंथ लूं तो 10,000 का 40% ले सकता हूं, 4,000 पर मंथ आएगा बेटा, पर मंथ आएगा तो 4,000 पर मंथ इंटू 12 करना पड़ेगा, एनीवेज इट विल कम 48,000। तो आप पर मंथ लो या पर एनम लो, कैलकुलेशन will be going there only. Next allowances which are given in the question. अगला अलाउंस कौन सा दिया है, हमने कंक्लूड किया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा टैक्सेबल आएगा। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल अलाउंस है, आप लिस्ट देख सकते हैं जो हमने देखा था। तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे, और फिर हम लेते हैं
जो अगला अलाउंस दिया है दैट वी आर गोइंग टू टेक. सो पहले लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस. लेट्स टेक इट एज इट इज. सो इट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट है, हमें पता है, लेकिन बाद में देखते हैं डिडक्शन क्योंकि देने हैं. कब देने? डिडक्शन देने बाद में. और एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन इज 1000 पर मंथ, which is given in the question. 1000 per month into 12. So how much is the entertainment allowance, students? It is 12,000. 12,000 entertainment allowance आया आपका. So this way we are proceeding towards our solution. Next is given, my dear, city compensatory and medical both are fully taxable. एक 200 per month और दूसरा 5,000 per annum दिया है. सिटी कंपेंसेटरी 200 है और मेडिकल 5,000 पर एनम है. तो चलिए सिटी कंपेंसेटरी लेते हैं पहले. City compensatory allowance, as I already told you, it is fully taxable allowance, no matter. City compensatory allowance. So by rule it is fully taxable allowance. आप देख सकते हैं लिस्ट में allowances के लेक्चर में. City compensatory allowance, it is given 200 per month multiplied by 12. So it is 2,400. Next, it is given is अगला अलाउंस सिटी कंपेंसेटरी के बाद दिया है मेडिकल अलाउंस एंड दैट इज गिवन पर एनम 5,000 रुपए दिया है. दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हियर. तो पर एनम दिया है इसलिए एज इट इज, कोई कैलकुलेशन नहीं क्योंकि उन्होंने देते टाइम ही पर एनम दिया है. तो दिस इज हाउ ऑल अलाउंसेस वी हैव रिटन स्टूडेंट्स. अभी तक जैसे दिया वैसे हमने लिखा है, कोई हमने सीक्वेंस में भी चेंज नहीं किया है. नेक्स्ट इसके बाद दिया उन्होंने आरपीएफ. अब आरपीएफ दिया तो आरपीएफ खत्म करते हैं एक साथ. मैंने बोला आपको सब कुछ एक बार चालू किया कि उसको खत्म करना है. सो नेक्स्ट इज टैक्सेबल. आई वुड राइट डाउन आरपीएफ देयर. सो नेक्स्ट मैं टैक्सेबल आरपीएफ लिखूंगा. दैट इज मच बेटर टू राइट डाउन. चलिए नंबर 6 इज टैक्सेबल आरपीएफ. जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें 3 चीजें हैं, कभी भी 3 चीजें रहेगी. नंबर 1 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 3 इंटरेस्ट. तो ये 3 कंपोनेंट हमें ऐड करने हैं जब भी ये आएगा पिक्चर में. तो सबसे पहले इज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसे दिया है वैसे लेंगे बेटा और उस तरह से उसका टैक्सेबिलिटी हम ऑब्जर्व करेंगे. सेकेंड इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज इंटरेस्ट. तो ये 3 चीजें हम कभी भी लिखेंगे. दी है तो ठीक है, नहीं है तो डैश लिख के आगे चले जाएंगे. सो दैट वे अराउंड वी नीड टू प्रोसीड. चलिए अब इसका वर्किंग नोट शायद हमें बनाना पड़ेगा. अभी तक वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन अब पड़ेगी. सो दिस इज हाउ साइमल्टेनियसली द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नीचे आके जगह देखनी पड़ेगी कितनी लगेगी. आई थिंक दिस विल बी फेयर इनफ. इतनी काफी होगी ऐसा लगता तो है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक बैक टू बैक पेज छोड़ दीजिए बेटा. जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हैं सोल्यूशन का टेबल, तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक पेज करना या आजू बाजू के 2 पेजेस पे टेबल बनाना पड़ेगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो. एंड एवरी कंपोनेंट इज गोइंग टू बी सेटल्ड देयर वेरी प्रॉपर्ली. मेरे ख्याल से और थोड़ा नीचे आना ही पड़ेगा. इतना काफी है एज फार एज सोल्यूशन इज कंसर्न. फिर सारे वर्किंग नोट. यस, आई थिंक दिस मच इज फेयर इनफ. अब इसके बाद वर्किंग नोट चालू करता हूं. आई एम हैविंग 10 लाइन्स. यस, फेयर इनफ. 10 लाइन है मेरे पास जो काफी हो जाएंगे क्योंकि आगे ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ही ज्यादा लगेगा. सो आई शुड राइट डाउन हियर वर्किंग नोट्स. और वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले. सो इट इज वर्किंग नोट्स. ये फेयर है बेटा तो इसको अच्छे से बनाना है. बिल्कुल इसमें कोई टाइम पास नहीं, फेयर वर्किंग है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट किसकी बनेंगे? इट इज टैक्सेबल आरपीएफ. ये पहली वर्किंग नोट हम बनाएंगे टैक्सेबल आरपीएफ. अब इसमें 3 कंपोनेंट है जैसे मैंने आपको बोले. नंबर 1 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 3 इंटरेस्ट. तो इस तरह से वर्किंग नोट हमें बनानी है एज फार एज दिस आरपीएफ इज कंसर्न.
मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे ही चलते हैं, बेटर है, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट नोट्स सम सॉल्व करने के पहले कि यहाँ पे लिखे थे। तो नीचे चलते हैं, बेटर रहेगा। तो यहां से नीचे से चालू करता हूं बेटा, ये काम की बात है। सो लेट्स सॉल्व दिस वेरी प्रॉपर्ली। देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में आरपीएफ के बारे में। आप देख सकते हैं हियर इट इज गिवन दैट एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स एंड हिज ओन, मतलब दत्ताता एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, इट इज गिवन 15% ऑफ बेसिक सैलरी। वैसे हमने देखा है आरपीएफ अगर है और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 12% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ 15 दिया है, मतलब 3% टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट उन्होंने दिया है 13%, लेकिन एग्जेम्प्टेड है 9.5% बाय रूल। तो चलिए नोट लिखते हैं। नंबर 1, सबसे पहली नोट क्या आएगी, सबसे पहले आएगी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, employee contribution to RPF is exempted। कहां तक exempted है, exempted up to rupees 1.5 lakh per annum under section 80C। ये है। वैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना किया, 12% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो 1,20,000 का 12% हम निकालेंगे। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉई का। तो ये 12% लेंगे अपन। बेसिक सैलरी आपकी है 1,20,000, तो ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन रुपीज 14,400 पर एनम। और ऑब्वियसली ये 1.5 लाख से तो कम ही है, सो इट इज फुली एग्जेम्प्टेड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू 1.5 लाख पर एनम अंडर सेक्शन 80C। और कंट्रीब्यूशन याद रखिए बेटा, जब हम 80C का कैलकुलेशन करेंगे तब लेंगे 14,400। आगे चलते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। व्हाट इज द रूल फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रूल सेज दैट employer contribution to RPF is exempted up to 12% of meaning of salary, up to 12% of salary। वैसे मीनिंग ऑफ सैलरी होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी है, वरना मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर पीएफ है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी है, डी ए नॉन फॉर्मिंग पार्ट है और परसेंटेज कमीशन नहीं दिया है, मतलब बेसिक सैलरी चलेगा। बट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन गिवन हियर, बट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन सम इज 15% ऑफ सैलरी। एक्चुअल 15% दिया और एग्जेम्प्टेड 12% है। Hence, taxable employer contribution is equal to, hence taxable employer contribution to RPF is equal to 15 minus 12 is equal to 3% of ऑब्वियसली सैलरी, बट यहाँ पे बेसिक सैलरी है क्योंकि यहाँ पे डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया है और परसेंटेज कमीशन भी नहीं दिया है। सो टैक्सेबल कितना आएगा, सो इट इज 3%, 3/100 इंटू आपका बेसिक सैलरी है 1,20,000, सो इट इज 3,600 इज फुली टैक्सेबल। टैक्सेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका 3,600 आएगा। कैसे आया? आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस। Now the third note is interest on RPF is interest on RPF is given, कितना दिया है? At 13%, rupees 26,000। But by rule क्या है बेटा? But interest on RPF is exempted up to 9.5% of such interest।
but interest on RPF is exempted. कितना exempted है? up to 9.5% per annum. 9.5% तक ही exempted है. दिया 26,000 है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कैसे करेंगे ये देखिए, ऐसे करते हैं. अभी सैलरी के हिसाब से तो नहीं है. given is 13%, exempted is 9.5, therefore taxable interest is equal to कितना आएगा taxable interest? सीधी बात है 13 minus 9.5, 13 minus 9.5 मतलब 3.5% is taxable of interest. लेकिन कैसे निकालेंगे? ये निकालने का तरीका इस तरह से है that if 13% is rupees 26,000 which is given in the question. देख लेते हैं वही है क्या, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में एक बार चेक करते हैं. देखिए इंटरेस्ट ऑन accumulated balance of RPF at 13% is 26,000. बराबर जा रहे हैं अपन. 13% अगर 26,000 दिया है तो हमें टैक्सेबल निकालना है, तो 9.5 के बजाय सिर्फ टैक्सेबल निकालते हैं. 3.5 इज हाउ मच? अगर 13% 26,000 है तो 3.5% इज हाउ मच? दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. सो इट इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 26,000 डिवाइडेड बाय 13. दिस वे अराउंड इट इज कैलकुलेटेड. इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. और ये देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं. मेरे पास तो अभी उसकी जरूरत है नहीं. 2000 into 3.5 is what the taxable as far as this particular thing is concerned. and how much is taxable? 2000 into 3.5 अगर करूं, आप कैलकुलेटर जरूर यूज कर सकते हैं बेटा. you can use calculator here for doing the calculations, and let me do the calculation here by the calculator. we all can do, that is not an issue. so that is 2000 into 3.5. तो कैलकुलेटर पे हम सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2000 into 3.5. टैक्सेबल अमाउंट इज 7,000 फॉर इंटरेस्ट. तो ये 7,000 टैक्सेबल आएगा इंटरेस्ट. तो हमने तीनों क्लॉज इसके पूरे कर लिए बेटा. तो ये आएगा 7,000 रुपए, एंड दैट यू कैन सी हियर. तो ये पूरा हो गया हमारा कैलकुलेशन. we are done with the calculation for entire PF component here. पूरा जो PF component है हमारा हो चुका है. एम्प्लॉयर कितना टैक्सेबल है एम्प्लॉयर का वो हमने देख लिया. हाउ मच इज एम्प्लॉयर टैक्सेबल? 3,600. एम्प्लॉय टैक्सेबल है नहीं, और इंटरेस्ट 7,000. तो चलो ऊपर लिखते हैं. और ये देखिए वर्किंग मैंने साइमल्टेनियस किया बेटा. वर्किंग इज साइमल्टेनियस. सो लेट मी पुट डाउन द फिगर्स हियर. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में मैं क्या लिखूं? मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा सेक्शन 80C. याद रखना ये डिडक्शन मुझे देना है बाद में 14,400 का. तो यहां पे नील आएगा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आई शुड राइट डाउन वर्किंग नोट 1 सेम. तो ये आएगा 3,600 बाय वर्किंग नोट 1, और ये आएगा 7,000. तो ये हो गया बेटा खत्म. ये देखिए इस तरह से बड़ा प्रॉपर हमने किया है. अब ये कहां से आया? तो इसका आंसर नीचे है, ये यहां से आया. ये देखिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो 14,400 एग्जेम्प्टेड रहेगा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 3,600 टैक्सेबल रहेगा. कैसे आया वो भी लिखा हमने. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ये भी कैसे आया हमने लिख दिया. सो दैट वे अराउंड इस तरह से कैलकुलेशन करने, और बहुत जरूरी है आप इस तरह से लिखें, बिकॉज दिस वे अराउंड इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी प्रॉपर वे. तो यहां तक आए हम. अभी पीएफ खत्म हो गया. अगला देखते क्या दिया है. नेक्स्ट इज गिवन अ परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ कार. और कार के बाद मैंने बोला आपको हाउस को इग्नोर करना. तो हमें कार का कैलकुलेशन करना है. कार कैसी है सबसे पहले देखना है. कार ऑफिशियल यूज के लिए यूज की है, प्राइवेट यूज के लिए यूज की है, या पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल है. तो यहां पे दिया बेटा ही इज प्रोवाइडेड विथ 2 लीटर कार, मतलब कार बड़ी है. Anything which is above 1.6 liter cubic capacity is a big car. Anything which is less than 1.6 is a small car. ये बड़ी कार है. All the expenses including driver salary are paid by the factory, made by the factory. The car is used for partly official and partly personal purposes. Working note बनती है कि कार partly official और partly personal purpose के लिए बनी है. तो चलिए लिखते बेटा working note. और हमें रूल पता है, कार का रूल हमने देखा था. इफ कार इज यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पसेस, तो वो केस में एक टेबल हमने दिया था, और वो टेबल के हिसाब से ही हमें सारी चीजें करनी है.
as far as the table is concerned for this particular car, and that we have seen it is in the form of need to be done, that if car is small car or car is big car. तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, टैक्सेबल आरपीएफ. अभी चलते हैं और आगे का लिखते हैं, दैट इज टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वर्किंग नोट नंबर 2. ये देखिए, टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, दिस इज द सेकेंड वर्किंग नोट. ये अगला वर्किंग नोट है बेटा. तो क्या लिखना है हमें, व्हाट वी आर सपोज टू राइट डाउन हियर. चलिए खत्म करते हैं, इसको लिखते हैं प्रॉपर्ली. व्हाट शुड बी द कमेंट्री हियर, कार इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर to employee for what, partly official and personal purpose. कार कैसे दी है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज. कार कैसी है, स्मॉल और बिग. कार इज बिग कार क्योंकि 1.6 के अबव है. एंड expenses of car along with driver salary. ऐसा ही टेबल हमने देखा था, देखना परक्विजिट्स के लेक्चर में बेटा. ड्राइवर सैलरी आर मेट बाय फैक्ट्री और पेड बाय फैक्ट्री, मतलब एम्प्लॉयर ही दे रहा है. तो क्राइटेरिया, कार इज ओन्ड और गिवन बाय एम्प्लॉयर, कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉई or partly official and partly personal purposes. Car is big car, running maintenance of such expenses car along with driver salary are paid by employer. Then therefore taxable valuation of this car is, therefore taxable valuation of car कितना होता है बेटा, याद कीजिए. टैक्सेबल वैल्यूएशन या तो 1800 पर मंथ था या तो 2400. 1800 स्मॉल कार के लिए, 2400 बड़ी कार के लिए. when expenses are paid or reimbursed by employer. तो यहां पे 2400 पर मंथ आएगा कार का, प्लस 900 पर मंथ आएगा ड्राइवर का. टेबल देख लीजिए बेटा, परक्विजिट्स का लेक्चर देख लीजिए, वहां पे समझ में आ जाएगा. सो इट इज 3300 पर मंथ इंटू 12. सो इट इज 12 3 जा 36 एंड 12 3 जा 36, मतलब ये कितना आएगा 39,600 इज फुली टैक्सेबल. ये कार का वैल्यूएशन है. कार इज given by the employer to the employee, car is used by the employee for partly official partly personal purposes, but car is a big car more than 1.6 liter cubic capacity, and running maintenance expenses of the car are paid by the employer or reimbursed by the employer. Then taxable valuation of such motor car is 2400 per month for car, 900 per month for driver, and multiplied by 12 it will come 39,600. so taxable valuation of car का कैलकुलेशन हमारा हो गया. और यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं. अब आएगा नंबर 7. what, it is taxable perquisites. taxable perks आएगा हमारा अगला, और उसमें सिर्फ मोटर कार ही है. दूसरा जो perquisite था वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि that is I already told you कि वो कॉन्ट्रास्टिंग है. So it is valuation of motor car, valuation of motor car, or this is working note number 2, and valuation is 39,600. Done. ये हो गया कार बेटा. अभी देखते हैं कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में. ग्रॉस सैलरी में, मतलब बिफोर डिडक्शन, तो पहले हमें ग्रॉस निकालना है, फिर हमें निकालना है डिडक्शन, और फिर आगे चलना है. ये देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स बचा है. पीएफ हमने ले लिया, अकोमोडेशन हमें लेना नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग है. मैंने बोल दिया आपको ये सम में, एज फार एज दिस सम इज कंसर्न, दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग है. और उसके बाद भी है क्वालिफाइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो वो भी हमें ग्रॉस सैलरी के बाद ही लेना है. फॉर्मेलिटी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले बेसिक, बोनस, फीस, एडवांस सैलरी, अरियर सैलरी, कमीशन, प्लस अलाउंसेस, प्लस परक्विजिट, प्लस पीएफ, प्लस ग्रेच्युटी, प्लस पेंशन, ये सबको मिला के ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 1, 2 and 3 स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स. उसके बाद नेट सैलरी, नेट सैलरी के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80. इस तरह से हमें सम कंप्लीट करना है. तो चलिए पहले ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी का टोटल निकालते हैं यहाँ पे. लेट्स डू द टोटल.
एंड लेट्स कंप्लीट विथ ग्रॉस सैलरी फर्स्ट। सबसे पहले 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000। आउटर में हम सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट लिखते हैं बेटा, इनर में कोई अगर कैलकुलेशन है एग्जम्प्टेड है तो हम लिखते हैं प्लस 2400 प्लस 5,000। इसमें कोई पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस आज ऑफ नहीं आया है, लेकिन बाद में जरूर आएगा। प्लस 3,600 प्लस 7,000 प्लस 39,600, ये अभी तक का टोटल है। 237,600 इज ग्रॉस सैलरी, क्योंकि यहां पे के बाद डिडक्शन ही लेने हैं हमें। तो चलिए आगे चलते हैं एंड लेट अस राइट डाउन ग्रॉस सैलरी। सो हियर इट इज ग्रॉस सैलरी, मतलब बिफोर एनी डिडक्शन, एंड दैट इज 2,37,600। तो यहां पे ये क्लोज हो गया ग्रॉस सैलरी बिफोर डिडक्शंस 237,600 दैट वी कैन सी। अब डिडक्शन देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा एप्लीकेबल है, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 के डिडक्शंस देंगे। उसमें सबसे पहला डिडक्शन तो 1 ही लिखता हूं मैं उसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन। Standard deduction irrespective of any employment, it is 50,000 per annum right now. So writing down 50,000 as it is. Second is entertainment allowance applicable only for government employee. और ये केस में तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट ही है तो डिडक्शन तो मिलेगा। ऊपर हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल लिया और नीचे हमें डिडक्शन देना है, क्योंकि रूल ही उस तरह से बोलता है दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस शुड बी टेकन एज फुली टैक्सेबल फर्स्ट। पहले उसको एज इट इज टैक्सेबल लेना है और बाद में कोई डिडक्शन है तो उसका देना है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का वर्किंग नोट बनाते हैं। तीनों डिडक्शन मैंने लिखे, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, टैक्सेबल ईए और एग्जम्प्टेड ईए निकालते हैं, क्योंकि एग्जम्प्टेड ईए माइनस करना है, टैक्सेबल नहीं निकालना है हमें रादर। तो एग्जम्प्टेड ईए ले लेते हैं और कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड ईए, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड ईए कौन से सेक्शन में निकालता है ये? सेक्शन 16(2) में एप्लीकेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। याद रखिए बेटा, प्राइवेट एम्प्लॉय रहा तो कोई वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका रूल बोलता है सबसे पहले MOS दैट इज मीनिंग ऑफ सैलरी इज बेसिक सैलरी एंड दैट इज ₹1,20,000 फॉर दिस सम। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी लिखनी है जो बेसिक सैलरी है फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड ईए का रूल है लीस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड। तीनों जो दिए वाली कैलकुलेशन है नीचे, उनमें से जो लोअर आएगा वो एग्जम्प्टेड रहेगा इफ इट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एब्सोल्युटली। और ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया बेटा। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट नहीं होता तो ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो याद रखिए, बीइंग एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट, दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द सेम। तो कैलकुलेशन बोलता है लिस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड। नंबर 1, सबसे पहले एक्चुअल ईए रिसीव्ड। एक्चुअल ईए दिया कितना है वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से दैट इज 1,000 पर मंथ। बराबर स्टूडेंट्स, 1,000 per month into 12, it is 12,000. So that is clause number 1. Second, absolute amount of ₹5,000, जिसको absolute limit बोला जाता है। absolute मतलब constant बेटा, जो change नहीं होगा। और ये देते टाइम 5,000 पर annum दिया है, मतलब ये as it is रहेगा, क्योंकि ये per annum है। और तीसरा क्लॉज बोलता है 20% और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। 20% लो या 1/5 लो, कैलकुलेशन तो वही आता है। तो 1,20,000 आपकी बेसिक सैलरी है, उसका 1/5 लो या 20% लो, कैलकुलेशन तो वही आएगा। 1,20,000 का 20% आएगा 24,000। तो ये तीनों में से जो लोअर है वो लेना है। बताइए बेटा, ये तीनों में लोअर क्या है?
Yes, absolutely. 5,000 is the lower amount and that is the exempted amount. Therefore, exempted EA is equal to, exempted EA कितना आएगा? Therefore, exempted EA is equal to, exempted EA आपका कितना आया? ₹5,000. So this is working note number 3 और इसके हिसाब से माइनस कर लेते हैं यहाँ पे. एंटरटेनमेंट अलाउंस वर्किंग नोट नंबर 3 यहां पे लिख देता हूं नीचे, एंड exempted is 5,000. आई एम राइटिंग डाउन द एग्जम्पशंस देयर. प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया क्वेश्चन में? 225 पर मंथ इट इज गिवन, लेकिन हमारे हिसाब से 2500 पर एनम मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता. हम कर लेते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं कि हम इसको डिडक्शन दे सकते हैं या नहीं. 225 इंटू 12 2700 आ रहा होगा, लेकिन 2700 का डिडक्शन हम दे नहीं सकते बिकॉज बाय रूल इट इज 2500 पर एनम और एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर. तो दोनों में लोअर क्या है? ऑब्वियसली 2500 है, तो इतना ही डिडक्शन हम दे पाएंगे, इससे ज्यादा दे नहीं सकते. क्यों? क्योंकि रूल बोलता है प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन मैक्सिमम ₹2,500 पर एनम और एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर. तो ये तीनों को मिला के डिडक्शन देते हैं. 50 प्लस 5 55 प्लस 2 57,500, यानी टोटल 57,500 का डिडक्शन हमें देना पड़ेगा. 37,600 में से 57,500 का डिडक्शन हमें देना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट डिडक्शन हियर. ये पहला डिडक्शन है. सो इट इज 237,600 माइनस 57,500, दैट इज 1,80,100, 180,100. Let me do it again. 237,600 minus 57,500 minus 57,500, 180,100 is the calculation. 1,80,100 और इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? This is called as net salary. इसको हम बुलाते हैं net salary. एंड दैट इज 1,80,100. तो ये ग्रॉस के बाद नेट और नेट के बाद अब डिडक्शन आखिरी वाले एटीसी वाले बेटा, बस उतने देने बाकी है एंड देन वी आर डन. यस इट टेक्स टाइम बट कांट हेल्प. इसी तरह से आपको पैसा कमाना है और इसी तरह से टैक्स बचाना है, दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते बेटा. सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज वंडरफुल हियर. एंड नाउ लेट्स गिव द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 वाले डिडक्शन मैं दे देता हूं यहाँ पे. और चलिए 80 वाले डिडक्शन दे देते हैं अभी. एंड लास्ट डिडक्शंस लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 के डिडक्शंस सब 1 बाय 1 एक साथ इकट्ठा ले लेता हूं मैं, क्योंकि सारे 80C के ही हैं ये क्वेश्चन में. तो देखिए बेटा क्या क्या दिया है. LIC प्रीमियम 80 का ही डिडक्शन है 80C का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 80C है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 80C है, और एक भूल रहे अपन दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF, तो भी यहाँ पे लेना पड़ेगा. तो सबका टोटल लेते हैं बेटा और सबको वहां पे लिखते भी है. तो 14,250 क्वालिफाइज फॉर 80C प्लस 10,000 क्वालिफाइज फॉर 80C प्लस 5,000. आप बोलेंगे ऊपर RPF भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी PF आने दो, यू कैन ऐड इनटू द मैक्स लिमिट ऑफ 1.5 लाख. और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 22,000 और उसी के साथ लास्ट वाला 14,400 आपका बेसिक सैलरी का 12% था मेरे ख्याल से. कितना था? 14,400 नहीं, आखिरी वाला कितना है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF कितना आया था? ये देखिए नोट्स में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF का डिडक्शन एंड दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% है, 1,20,000 का 14,400. ये भी ऐड करना पड़ेगा हमें 80C में प्लस 14,400, मतलब ये पांचों ऐड कर दिया था. 14,250 10 5 22,000 और 14,400 पूरा मिला के 65,650 विच इज विद इन लिमिट. पूरा लिमिट के अंदर है, क्योंकि लिमिट बोलता है 1,50,000 पर एनम, लिमिट के अंदर है, तो सारे डिडक्शन हम दे सकते हैं 80C के अंदर. सो लेट मी राइट डाउन ऑल ऑफ देम 1 बाय 1. तो सारे मैं लिखता हूं. सबसे पहले क्या दिया था वहां पे? LIC, NSC, PPF एंड रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन.
सो लेट मी राइट डाउन. वैसे 1 by 1 लिखने चाहिए, तो मैं बस छोटा छोटा लिखता हूं यहाँ पे. LIC, NSC, PPF, देन ट्यूशन फीस और आखिरी में RPF. ये सारे मिला के देने पड़ेंगे. सबका अमाउंट का टोटल मैंने ले लिया एक साथ ही. आई हैव टेकन द अमाउंट टोटल दैट इज 65,650, राइट. ये सारा मिला के आएगा मेरा 65,650. अगर ये 1.5 के ऊपर जाता तो नहीं लेता बेटा मैं यहाँ पे, क्योंकि 1.5 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. आई एम हैविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर. तो मुझे उतना ही लेना है. बस 1 मिनट दीजिए, हो गया सम हमारा. फाइनली वी आर डन. तो माइनस कीजिए 180 100 माइनस 65 650. 180 100 114,450 इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. 114,450 एंड दिस इज टैक्सेबल income from salary. I hope you enjoyed this. इसको पेशेंटली ही सॉल्व करना पड़ता है, सारे रूल याद रखने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है. सारे रूल देखने पड़ेंगे. अलाउंसेस, परक्विजिट, ग्रेचुटी, पेंशन, PF, deduction under section 16 and deduction under section 80C to 80U. So here this is the fantastic answer my dear. 1,14,450 and this is your income टैक्सेबल फ्रॉम सैलरी इनकम. तो ये फॉर्मेट है, ये देखिए इस तरह से हमें सॉल्व करना है बेटा. तो आपने देखा कैसे पैरेलली सॉल्व करना है. हेड वहां से लेने हैं जहां पे वर्किंग नोट है, नीचे वर्किंग नोट बतानी है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सो आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सम. we'll be having 4 more sum of different varieties so that salary will be perfect for you, and then I'll be giving you 15 to 20 practice question कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक क्या है. ये तो सिर्फ मैंने किया बेटा. so we need to do it very properly. so this is how it is to be done. so this is the format and this is how it need to be done with all important notes there. तो important note, working note हमारे कितने बने? 3. working note fair है तो हमें बिल्कुल properly बनाने. तो याद रखिए students, and I hope you enjoyed this sum. Thank you and have a wonderful day ahead. Let's meet for the next sum. Bye bye.